Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a lecture on Sindh College Lecturers YouTube channel under the instructions of Honorable Education Minister and Secretary of College Education Department, Government of Sindh. Kind instructions of Principal Professor Irshad Abbasi and supervision of Head of Botany Department Professor Musarrat Mehmun. It's me, Shahida Parveen, lecturer in botany at Government Girls Degree College, Larkana. Dear student, today I have selected topic from first year book chapter number 12, Mineral Nutrition in Plants. In this topic, we would cover all given contents. So let's start. Introduction of nutrition. All living organisms such as plants and animals require food. So food is essential for all living organisms. The process of utilization of food by living organism to obtain energy is called nutrition. तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन जो फूड है, जब हम वो खाते हैं तो उससे क्या मिलती है? एनर्जी. सो प्लांट्स को भी क्या चाहिए? फूड, जिससे वो क्या हासिल करें? Energy. Now organisms need food, nutrients, obtain energy, obtain material for growth, obtain material for repair of damaged body parts, carry out life process. ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ के लिए, जो भी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो गए उनके लिए, और जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं लाइफ को उसको कैरी आउट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत होती है? फूड की. Now mode of nutrition. There are two mode of nutrition which are as follows: autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic. Auto means self, trophic means nourishment, hetero means other, trophic means nourishment. There are two type of mode of nutrition. जो न्यूट्रिशन के टाइप हैं वो दो हैं. एक तो है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आ जाते हैं जी प्लांट्स. So autotrophs are autotrophic plants that have chlorophyll trapped by the energy from the sun and prepare their own food. Such nutrition wherein food is prepared by the organism itself is called autotrophic nutrition. The organism capable of preparing their own food are called autotrophs. All green plants are autotroph. They prepare their own food by the process called photosynthesis. photosynthesis का process जो है वो क्या है? इस प्रोसेस में होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर. प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीफ की मदद से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनसे क्या बनता है? ग्लूकोज शुगर. ये ग्लूकोज शुगर जो है प्लांट यूज़ करते हैं. इसके बाद जो बनती है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होती है जो रेस्पिरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. सो ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? ये प्लांट्स से जो ना सिर्फ फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, बट उसके नतीजे में क्या होता है? ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के काम आता है. अब जो है हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफ्स. Heterotrophic organisms are those who obtain food from other organisms. Since these organisms depend on other organisms for their food, they are called consumers. All animals and non-green plants like fungi come under this category. Organisms that follow the heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Heterotrophs क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म से जो एनर्जी हासिल करनी है, फूड कहाँ से हासिल करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से. सो इनमें फंजाई भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए और हम ह्यूमन बीइंग भी आ गए. तो ये फूड कहाँ से हासिल करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से. और दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में क्या आ जाता है? मोस्टली प्लांट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आपने जानिए, उसके टाइप्स जानिए. तो अब डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन क्या है. Mineral nutrition is defined as the naturally occurring inorganic nutrients found in the soil that is essential for the proper functioning of plant body. The process of absorption and distribution of minerals through the plant body is called mineral nutrition. जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन के बारे में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा. न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट हासिल करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो मिल जाते हैं, लेकिन
कुछ न्यूट्रिशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉइल में मिलती हैं। लीव्स जो है वो परफॉर्म करता है प्रोसेस किसका, फोटोसिंथेसिस का। इट मीन्स यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस में लीफ ही रेस्पॉन्सिबल है प्रोसेस करने के लिए। किस टाइप का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या बनती है, शुगर। लेकिन प्लांट्स को शुगर के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, और वो जो मिनरल्स हैं कहाँ से मिलेंगे, सॉइल। सॉइल जो है वो जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। प्लांट्स जो है ये मिनरल्स कैसे ऑब्टेन करता है, थ्रू द रूट्स। तो सॉइल में जो भी मिनरल्स हैं वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है थ्रू द सिस्टम ऑफ रूट यहाँ पे क्या करती हैं, जितने भी मिनरल्स हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड जाइलम टिश्यूज़। तो यहाँ पे जो ये मिनरल न्यूट्रिशन है प्लांट्स की, जो ये हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, रूट। तो रूट के ज़रिए क्या करेंगे, प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स ना अभी हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं क्या, और उसके टाइप्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल्स इन फूड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू मेक एनर्जी, ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस। जो फूड है उसमें जो एनर्जी है उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका काम क्या है, ये करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में हेल्प। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर divided into two type. One is macronutrients and micronutrients. Macro means large and micro means small. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये नहीं है कि मैक्रो जो है कहीं हम कि ये बड़ी साइज़ के हैं, या माइक्रो जो है वो छोटी साइज़ के। यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ये क्या है, लार्जर है। जैसे कहेंगे हम, ये न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्जर अमाउंट्स आर टर्म्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. Micronutrients which are required by plants in very small amounts are termed as micronutrients. प्लांट्स को अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही चाहिए होते हैं। 13 मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स की ज़रूरत है। उनमें कुछ मैक्रो हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ पे जो हैं 6 जो हैं वो 6 जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रो जो हैं वो हैं आयरन, मैग्नीशियस, कॉपर, जिंक, बोरन, क्लोराइड एंड मोलिब्डेनम। ये दोनों ही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस, ये 3 जो हैं वो बेसिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके बगैर प्लांट की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे। जबकि सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जो हैं उसके बाद आते हैं। डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब तक तो हमारी समझ में ये बात आ चुकी है कि प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनका रोल क्या है। लेकिन यहाँ हम ये फिगर देख रहे हैं जिसमें आप मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स के चार्ट देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का चार्ट देख रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, बोरन, सल्फर, मैग्नीशियस, ये सारे के सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लांट्स में अगर किसी भी मिनरल न्यूट्रिशंस में किसी की भी डिफिशिएंसी हो जाती है तो हर एक एलिमेंट जो है वो शो करता है डिफिशिएंसी। किस तरह से, इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनमें शेप में, स्ट्रक्चर में, फॉर्म में चेंजिंग आएगा। जनरली जहाँ पर भी सिम्टम्स में डिफिशिएंसी होती है मिनरल्स की, तो वहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लीव्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे डार्क ग्रीन, कहीं पे पर्पल, कहीं पे ब्लूइश, कहीं पे लीफ पे स्पॉट होते हैं, कहीं पे वाइट येलोइश कलर का लीफ होता है, कहीं पे लेमन ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ब्राउन होता है। यहाँ तक कि कम्प्लीटली उनकी कलर चेंज हो जाते हैं। लीफ की साइज़ छोटी होती है, अर्ली फॉलिंग ऑफ लीफ हो जाता है। मेन जो काज है इन प्लांट की डिफिशिएंसी के वो मुख्तलिफ हैं। जैसे सॉइल है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल कंपोजिशन चेंज है। कहीं पे क्ले है, सैंड है, लोम है, सैंडी लोम है।
केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से भी इनमें न्यूट्रंस की डिफिशियंसी हो जाती है, या फिर सॉइल जो है वो वेरी एसिडिक है या उसमें अल्कलाइन ज़्यादा है। हेवी रेनफॉल की वजह से मिनरल्स जो है वो वाश आउट हो जाते हैं। सॉइल एरोजन है और लैंड स्लाइडिंग है, सॉइल का टेम्परेचर है, पीएच गर्स, बहुत सा रीज़न है। और प्लांट भी तो हैं, प्लांट्स की हैबिटेट मुख्तलिफ होती हैं, कहीं डेजर्ट्स में होते हैं, कहीं प्लांट्स जो है वो हेलोफाइट्स होते हैं, म्यूजोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट होते हैं, हाइग्रोफाइट्स होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है, और हर एलिमेंट का जो सिम्टम्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी मिनरल जो है वो एक मिनरल की कमी को पूरा नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो फास्फोरस जो है उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए इसको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाउ रोल एंड डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल और उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। नाइट्रोजन का क्या रोल है प्लांट्स में? नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर अमीनो एसिड फॉर्मेशन, necessary for cell division and for plant growth, necessary part in photosynthesis formation, essential for formation and uses of carbohydrates. नाइट्रोजन जो है उसका रोल किस में? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, उनसे क्या बनता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में अमीनो एसिड जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन नेसेसरी किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। सेल किस तरह से डिवाइड होता है? सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। तो सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं और डीएनए किसके बने हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के। और ये न्यूक्लिक एसिड आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं। फॉर प्लांट ग्रोथ अगर सेल डिवाइड होगा तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। इस तरह से प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। नाइट्रोजन जो है वो नेसेसरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसमें नाइट्रोजन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। असेंशियल है किसके लिए? फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन बनेगी और वो इजीली यूज होगा। नाउ सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन प्लांट्स। अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए प्लांट्स में तो कैसे पता चलेगा कि ये इस प्लांट्स में डिफिशियंसी है नाइट्रोजन की? सबसे पहले तो जो लीव्स अफेक्टेड होंगे वो क्या होंगे? older leaves or lower leaves. So lower leaves show chlorosis. Chlorosis है क्या? lack of chlorophyll. necrosis in older leaves, पहले जो old leaves हैं वो affected होंगे। और necrosis है क्या? इसमें होता है death of cell और tissue, hairs spots बन जाते हैं लीफ के ऊपर रेडिश कलर के, जिसमें सेल्स की और टिश्यू की डेथ हो जाती है। क्रॉप मेच्योर अर्ली बट अ पुअर क्वालिटी। क्रॉप अर्ली मेच्योर हो जाती है जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। और पुअर क्वालिटी का है कि इसमें जो क्रॉप है उसमें जो सीड्स हैं ग्रेन्स में उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होने की वजह से प्रोटीन जो है वो क्या होगा? कम अमाउंट में होगा, उसमें उतनी वो क्वालिटी की जो है वो नहीं होगी। येलो डिस्कलरेशन ऑफ लीफ टिप्स। कलर जो होगा इनिशियली कहाँ पे होगा? जो लीफ के टिप्स हैं उसमें येलोइश जो है कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये सब के सब असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स। असेंशियल इन सीड फॉर्मेशन, generate early root formation and growth of plant, enhance the fruit quality, provide tolerance to plant to survive in harsh winter condition, use for formation and transfer for energy to plant, use in cell division and cell enlargement. Now role of phosphorus, essential in seed formation, जब प्लांट मेच्योर हो जाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सीड की फॉर्मेशन होती है तो फास्फोरस जो है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है? सीड की फॉर्मेशन होती है। जब प्लांट सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो फास्फोरस क्या करता है? अगेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे रूट फॉर्मेशन जो है उसका प्रोसेस बहुत जल्दी होता है और प्लांट जो है उसकी ग्रोथ भी क्या होती है? फास्टर होती है। फ्रूट की क्वालिटी को एनहेंस करता है, किस तरह से? जो फ्रूट का शेप है, उसकी साइज़ है, उसका टेक्सचर है, वो सब डिपेंड करता है फास्फोरस पे। फास्फोरस जो है वो
विंटर कंडीशंस में टॉलरेंस जो है वो किस तरह से होती है। जब विंटर होता है तो फास्फोरस जो है शुगर को अक्यूमुलेट कर लेता है, किस में जमा कर लेता है, रूट में। और जब कंडीशन हार्श होती है, विंटर हार्श होता है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पाते, तब जो है फास्फोरस जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और अक्यूमुलेट शुगर जो है रूट में वो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यूज़ फॉर फॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू प्लांट्स। ये तो सभी जानते हैं कि प्लांट्स में या सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो फास्फोरस responsible for the formation of and transfer of energy not only plants but all living organism। सेल डिवीजन अगेन यहाँ पर भी ये बात फिर आ जाएगी। न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए डीएनए, और इनमें क्या है, फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। रोल ऑफ फास्फोरस, सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस इन प्लांट मोस्टली अकर इन यंग plant leaf and stem turns dark green. Older leaves show purplish discoloration, color change due to sugar accumulation, leaf tip become brown and die। यहाँ पे जो है वो यंग प्लांट अफेक्टेड होगा पहले, या ये कह लें कि यंग लीव्स जो हैं, इनिशियली जो लीव्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। प्लांट लीफ जो हैं और स्टेम जो है वो डार्कर ग्रीन कलर में नज़र आएंगे। ऑर्डर लीव्स जो हैं वो उनका जो कलर है वो पर्पलिश होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगी। पर्पल कलर जो होगा वो किस वजह से होगा, शुगर की एक्यूमुलेट हो गई है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई रूट लीव्स टू रूट। लीफ टिप जो है वो ब्राउन हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे, मतलब उसमें ड्राइनेस आ जाएगी। तो ये जो करेक्टर्स थे या सिम्टम्स थे किसके थे, फास्फोरस के थे। नाउ रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट्स एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स। Important in carbohydrate metabolism, enhance the translocation of starch, enhance the seed and fruit quality, improve the disease resistant, essential in protein synthesis। पोटाशियम जो है वो स्टार्च सिंथेसिस में मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंजाइम एक्टिविटी जो है उसके ज़रिए उसमें स्टार्च सिंथेसिस स्टार्ट करता है। पोटाशियम ये जो स्टार्च को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसफ़र करता है। पोटाशियम की वजह से सीड की क्वालिटी जो है, फ्रूट की क्वालिटी, शेप, साइज़, टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। पोटाशियम जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है। पोटाशियम सेल में एपिडर्मल प्लांट में जो है एपिडर्मल लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर उसको स्ट्रॉन्ग करता है, डिजीज़ रेजिस्टेंट करता है। सेल वाल जो है वो थिक होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपना होस्ट जो है वो रेजिस्ट करता है, डिजीज़ जो उसमें आसानी से वो पोटाशियम डिजीज़ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सेल वाल को थिक करता है। इस वजह से पैथोजन जो है वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। एसेंशियल इन प्रोटीन सिंथेसिस, पोटाशियम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारी एंजाइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और सिम्टम जो है डिफिशियंसी के, पोटाशियम रिडक्शन, ग्रोथ जो का जो रेट है वो कम हो जाएगा। बर्न लीफ टिप ऑफ द प्लांट, लीफ की जो टिप हैं वो जस्ट लाइक एन बर्न जले हुए दिखेंगे। रिड्यूस स्ट्रा एंड स्टॉक इन प्लांट्स, जो क्रॉप है मोस्टली ग्रासेस हैं, आफ्टर ग्रेन उसकी जो स्ट्रा और स्टॉक जो उसकी जो स्टॉक है उसकी लेंथ को, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करता है। शो लो प्रोटीन लेवल, पोटाशियम जो है प्रोटीन सिंथेसिस की एंजाइमेटिक एक्टिविटी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर डिफिशियंसी पोटाशियम की तो जो प्रोटीन लेवल है वो क्या होगा, लो होगा। नाउ रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स, it is part in nitrogen metabolism, enhance fruit set percentage, may use for formation and division of cell, may start microorganisms activity, enhance nut development in some fruit। कैल्शियम नाइट्रोजन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए उसमें चेंजिंग आता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में। कैल्शियम जो है फ्रूट की परसेंटेज को इंक्रीज़ करता है। सेल डिवीजन में जब सेल डिवाइड होते हैं, वन सेल डिवाइड गिव्स टू सेल, जब दो सेल बनते हैं तो प्लांट में जो है वो कैल्शियम है जो कैल्शियम पेक्टिएट बनाता है और सेल को सेपरेट करता है। नाइट्रोजन है तो अगर कैल्शियम होगा तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं
वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, अमोनिया में। सम फ्रूट्स में स्पेशली नट्स में, आलमंड हो गया और कैशू में ये डेवलपमेंट करता है नट्स की। सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम और डिफिशिएंट सिम्टम्स जो है वो कैल्शियम के प्लांट्स में स्टेम बिकम वीक एंड में डाई, लीफ टिप बिकम ड्राई एंड विल्ट, leaves become abnormally dark green, cause low transpiration rate, cause brown spots in fruits। स्टेम जो है वो वीक होगी और ये आगे बढ़ भी ना पाए, हो सकता है इसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर सेल डिवीजन जो है वो प्रॉपरली उसकी सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल वाल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसकी जो कंपोजिशन है, शेप है, वो ठीक नहीं होगी। लीफ का जो टिप है वो भी ड्राई होगा और विल्ट हो जाएगा। अगेन सेल डिवीजन तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे सेल जो है उनकी प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो सकी है। एबनॉर्मल होंगी, डार्क ग्रीन कलर के जो है वो लीव्स हो जाएंगे। ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और फ्रूट्स पे हैं जो वो उन पे ब्राउनिश से स्पॉट हो जाएंगे क्योंकि कैल्शियम की डिफिशिएंसी है। ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस वेयर वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेपर। सो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो डिक्रीज होगा। मैग्नीशियम के बगैर प्लांट्स जो है उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता। मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए और कैरियर है फास्फोरस के लिए। इसको यूटिलाइज करता है और मूव करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटीज़ के लिए, कोएंजाइम्स के लिए। आल्सो ये इम्प्रूव करता है प्लांट्स में आयरन की यूटिलाइजेशंस को एंड काज अर्ली इलनेस एंड मेच्योर प्लांट्स। मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स में मैच्योरेशन करता है। सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम डिफिशिएंसी इन प्लांट काज इंटरवेनल necrosis, leaf margin changes to reddish purple, reduced photosynthetic activity, reduction in enzymes activity causing aging of leaves। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से निक्रोसिस, जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्लांट में सेल्स की टिश्यू की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लीफ में मेन मिडरब है, उसकी जो वेन है, उनके जो बीच में जो पार्ट है उसमें डेथ हो जाती है टिश्यूज़ की। लीफ मार्जिन जो है उसमें रेडिश पर्पलिश कलर आ जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ द टिश्यूज़। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रिड्यूस होगी क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता और लाइट जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता। एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस होगी क्योंकि मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए। एंड लीफ जो है वो अर्ली एजिंग काजिंग हो गया, काजेज एजिंग ऑफ लीव्स जो हैं अर्ली फॉलिंग ऑफ लीफ हो जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो उनमें वर्क नहीं कर रहा। नाउ रोल ऑफ सल्फर इन प्लांट्स and their symptoms and last micronutrients। Role of sulfur in plants: the essential elements of amino acid help in formation of enzyme and vitamins, essential for seed formation, play important role in chlorophyll formation and promotes nodules। Essential elements of amino acids: some amino acids contain sulfur like methionine, cysteine and cysteine। It's also help in the formation of enzymes। These enzymes जो है वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम जो है ये आयरन कंटेनिंग सल्फर है और जो विटामिन है वो सल्फर हेल्प करता है विटामिन B1 में। सल्फर एसेंशियल एसिड फॉर्मेशन में जो सीड है उसमें सल्फर क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सल्फर जो है वो अगेन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सल्फर जो है इसमें सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया जो हैं ये बैक्टीरिया सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं और जो नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स जो है वो सोइलन पार्ट होता है स्पेशली लिग्यूम प्लांट्स में। लिग्यूम प्लांट्स में क्या आ जाते हैं वो प्लांट्स जिसमें हमें दालें वगैरह मिलती हैं, तो इनमें ये प्रमोट करता है किसको, नोड्यूल्स को, जिसमें नाइट्रोजन जो भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। Now symptoms of sulfur deficiency in plants: reduction in protein and chlorophyll synthesis, young leaves become yellow from green color, stem become spindly and short, if not protected all plant become pale green, stunt growth of plant। सल्फर की डिफिशियंसी से प्रोटीन जो
वो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटीन काम नहीं कर सकता और ना ही क्लोरोफिल सिंथेसिस जो है वो होगा। लीव जो है उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। वो लीव्स कौन से होंगे, यंग लीव्स होंगे। स्टेम जो है वो या तो लॉन्ग और थिन होगी या फिर शॉर्ट होगी। अगर सल्फर की डिफिशियंसी को हमने पूरा नहीं किया तो पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, पेल ग्रीन, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। उसमें न्यूट्रिशन है, उसके टाइप्स हैं, मिनरल न्यूट्रिशन है। मिनरल न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, नाइट्रोजन की, सल्फर की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, पोटाशियम की। इन मैक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से प्लांट की जो ग्रोथ है, उसके जो लीव्स हैं, उसकी फ्रूट फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन है, वो जो है वो अफेक्टेड होती है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ जो कुछ भी आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।